Hello students, today I am going to discuss electric field due to a charged spherical shell but at outside point. In previous class we are done at inside point. Okay. B. At outside point R more than R. Alright. So similarly, motto is this, that we are going to discuss electric field due to this charged shell at outside point P. Okay. So through the same point, possible Gaussian surface will be spherical. That is spherical Gaussian surface. और देखिए यहाँ सरफेस चार्ज को इनक्लोज कर रही है. इसका मतलब ये है कि कंसेप्ट रिमेन्स द सेम. चार्ज Q. चलिए जी, in the same I am going to take that one small one. And whatsoever this outside point correspond to the same spherical one, let having radius r. That's why this r is more than capital R. Same mathematical language. Next, ds outward, electric field outward, yani here ds, that is along E. Alright, yani ki first step figure complete a Gaussian surface, a small Gaussian surface. Second one, now we'll discuss electrostatic flux through this small electrostatic flux and then total by integration. And therefore electrostatic flux passing through a small Gaussian surface will be, this is d phi E. ADS cos 0 degree. Both E and DS along angle 0 degree. That is EDS only as equation number 1. And then total electrostatic flux through complete Gaussian surface will be, yes, total by integration d phi E integration ds. Alright, spherical one. So we are clear, this integration ds is nothing, that is 4 pi r square, means it becomes E into 4 pi r square. Equation 2. Step number 2. Third one, now using Gauss theorem. See, देखिए सिचुएशन से जो फ्लक्स आया वो ये है. गॉस थ्योरम क्या कहती है? सेम फ्लक्स अगर Q चार्ज एनक्लोज है
So that will be Q by epsilon naught. Alright, because same hai, that's why this can substitute here. Next line, E into 4 pi r square, and that is Q by epsilon naught. See here, that's why E becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. 4 pi epsilon naught के साथ r square Q के साथ. That is like the standard as equation number 3. But C1 important as well as basic. Charge is kept here. Gaussian surface is this. So electric field should be from here to there, and here to there it is not small r. Small r is from origin to there, where spherical charged shell is very near to the center, then that charged surface behaves like a point charge. Done. Now problem is solved. कि E के लिए R ये, लेकिन हमने लिया ये, बट अब अप्रॉक्सीमेशन ने हमारे इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया कि शेल को हमने नियर बाय लिया, यानी कि इट लुक्स लाइक ए पॉइंट चार्ज, देन डिस्टेंस एज टोटल. यानी यू सी दैट फील्ड बिकम्स not due to this charged spherical shell, but it becomes due to a point charge. Done. एक और छोटी सी बात यह है कि मोर ओवर अगर हम फील्ड का पोजीशन के साथ वेरिएशन देखें ग्राफिकली तो कैसा होगा. सी, वेरिएशन बिटवीन दिस एंड पोजीशन स्मॉल r कैन बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली एज इन फिगर. देखिए कैसा. चलिए यह बना देता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड that is capital A. Position, that is R. Okay. All right. Let this position is equal to capital R. So no doubt at the same this E will be maximum, and that is nothing 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. And up to this E is 0. I think clear. See graphical variation. Constant, constant. इसका मतलब reciprocal to the square of position. Okay. And see, if position is
लेस देन कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर। तो इसका मतलब हम इनसाइड द स्फीयर घुस गए, इनसाइड द शेल घुस गए, और इनसाइड हम करके आए हैं कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब इस इनसाइड पोजीशन में कोई फील्ड नहीं है। चलिए, और अगर पोजीशन हमारी एग्जैक्ट आर के बराबर है, क्योंकि जस्ट यहां से आउटसाइड शुरू है, तो नो डाउट फील्ड बिकम्स मैक्सिमम, रेसिप्रोकल स्क्वायर की टर्म्स में। तो ये जितना कम होगा ई उतना ज़्यादा है। मिनिमम कितना है? कैपिटल आर, राइट। आई एम जस्ट रिपीटिंग, स्मॉल आर अगर मेरा कैपिटल आर है, क्योंकि यहाँ से जस्ट आउटसाइड शुरू है, ओके, इसका मतलब मिनिमम है, इसका मतलब ई मैक्सिमम है, एंड दैट इज दिस। एंड देन आर increases, field decreases, but parabolically. So this variation is to be clear. And I would like to say ये outside case भी पूरा हो गया, ये application number 4 भी पूरी हुई मेरी। All 4 applications done with that theoretical point of view, or we can say theoretically this chapter is to be completed. Now we will make concentration upon concerning important numericals from the same chapter. Okay, clear. चलिए जी, charge minus q1 is revolving in a circular path with radius this around any other charge plus q2. Prove that period of revolution of the same charge of mass this about q2 will be this. तो आप ट्राई करेंगे इस पर, कोई डाउट होगा, राइट, तो वो आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, सी नाउ सॉल्यूशन गिवन एज इन फिगर। This is minus q1. This is plus q2. Its mass is ठीक है, क्वेश्चन। ऑलराइट, देखिए जो भी सिचुएशन है फिगर में क्लियर है। ये 2 मास चार्जेज हैं, ये फिक्स है, सेंटर पे है, ओके, और ये माइनस q1 रेडियस r के साथ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मास इसका स्मॉल m है। अब हमें प्रूव करना है कि इसका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, ये होगा। दैट्स आवर प्रॉब्लम। सिचुएशन क्लियर, प्रॉपर वे, बेसिक। सी देखिए, इसका जो मोशन है, ये जो रिवोल्यूशन है, ये है स्टडी मोशन है, स्टडी मोशन। और स्टडी मोशन अगर है तो समझ लो नेट फोर्स 0। एक कंसेप्ट हम इन्वॉल्व कर रहे हैं, या एक कंसेप्ट, एक बेसिक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि अगर कहीं स्टडी मोशन का केस है, बल्कि आई वुड लाइक टू राइट हियर, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। अब ये बेसिक रिवाइज कर दिया मैंने, बट ये इटसेल्फ नो डाउट जनरलाइज्ड मैनर में है, एंड नॉट ओनली फॉर CBSE बट फॉर कॉम्पिटिटिव पर्पस है कि कहीं भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिचुएशन हमारी स्टेशनरी की है, इक्विलिब्रियम की है, रेस्ट पोजीशन की है, नल पोजीशन की है, बैलेंस पोजीशन की है, स्टडी मोशन की है, तो सब जगह नेट फोर्स 0 होगा। ओके, और जहां नेट फोर्स 0 होगा वहां का प्रॉपर वे भी वही होगा, राइट। इसका मतलब हमें नेट फोर्स 0 एक्सप्लेन करना, हमारी प्रॉब्लम सोल्व।
अब कैसे, नेट किसी एक का तो होता नहीं, उसके लिए हम फोर्सेस स्टडी करेंगे और उनसे सिचुएशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेट फोर्स 0 मेंटेन करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए जी, तो अब आपको नेट फोर्स के लिए फोर्सेस स्टडी करनी है और फोर्सेस स्टडी होगी क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा इस चार्ज के इस मास पर, और चार्जेस 2 हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। इसका मतलब 2 फोर्सेस, द वन सेंट्रीपिटल ड्यू टू सर्कुलर मोशन, सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक ड्यू टू दीज 2 चार्जेस। कोई और फोर्स ना जी ना। बस अब इन 2 से हम नेट फोर्स 0 एक्सप्लेन करेंगे, 0 एक्सप्लेन हो गया। द वन विल बी बैलेंस्ड बाय द अदर। और बड़ी सिंपल सी बात है कि बैलेंस की सेंस क्या होती है, इक्वल एंड अपोजिट। बैलेंस की सेंस क्या है कि वन इज टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर। सी हियर, सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर, बट उसका एक रिएक्शन होगा सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीपिटल कैन बी टेकन हियर एज सेंट्रीफ्यूगल। ओके, इट मीन्स यू सी सेंट्रीफ्यूगल आउटवर्ड बन गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक राइट इनवर्ड बन गया, तो ये आउटवर्ड इनवर्ड से बैलेंस। दैट इज कम टू दिस पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये दोनों ले लीजिए, आपने बैलेंस कर दिया नेट फोर्स 0 के लिए। अब आप आगे बढ़ रही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपके पास क्या है, ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं, इसका इफेक्ट डायरेक्शन में होगा, राइट, और वो हम ऑलरेडी कह चुके हैं, अट्रैक्टिव, राइट, इनवर्ड। आइए, सेंट्रीपिटल इज नथिंग, दिस इज mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा वी कैन सिंप्लीफाई, you know where this omega, that is 2 pi divided by capital T, right? Okay, omega angular velocity, clear? in terms of capital T, क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड मेरी प्रॉब्लम है, राइट? देखिए, न्यूमेरिकल्स की एक बात रिपीट कर देता हूँ, सिचुएशन जो है वो ऑलवेज तुम्हारी आंख के सामने होनी चाहिए, एक्सीलेटर हाथ में होना चाहिए, बस देन प्रॉपर वे पर आप प्रोसीड करेंगे एंड यू कैन डू। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर एंड दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दिस यानी 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। चलो जी, टी स्क्वायर मैं इधर ले आया हूँ, बाकी सब उधर ले जाऊँगा इंटेंसली। कैसे? ऐसे, टी स्क्वायर, दिस इज mr इंटू 4 पाई स्क्वायर, ओके, इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ऑलराइट, mr 4 पाई स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है। अब कौन बचा? Q1 Q2, ये नीचे चला गया मेरे पास, दिस इज Q1 Q2, ओके। बढ़ता हूँ जी, अब देखिए ये रहा, सी कैलकुलेशन, 4 4 16 पाई स्क्वायर पाई पाई क्यूब, ओके, एप्सिलॉन नॉट। मैं इसीलिए देख रहा हूँ इसको क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसी के हिसाब से मेंटेन करें। इसके बाद m, क्या m है मेरे पास? यस, m, ओके, then RQ, yes, R square RQ, and this divided by Q1 Q2, that's T square, means T, it becomes square root of the same, 16 pi cube epsilon naught m R square and this by Q1 Q2। ये लो जी, the thing is done, proved। ये थी मेरी प्रॉब्लम, हो गई बेसिक। नेक्स्ट, नंबर 2, बट डोंट वरी, सी इट।
two similar spherical balls, each having mass this charge this, are hung from a massless silk thread of length this. Prove that in equilibrium, separation becomes x equal to this. This x value you are going to prove when each thread makes very small angle with the vertical. Okay, चलिए जी. Solution given as in figure. ओके अब देखो जो गिवन है मैंने फिगर में ले लिया ये ना थीटा स्मॉल एल ओके चार्ज क्यू मास एम राइट दैट वन इज ओके कीप इट क्वेश्चन मार्क ध्यान दो. देखिए ये है सिचुएशन कि सिस्टम हमारे पास टू स्पेरिकल आइडेंटिकल बॉल्स चार्ज सेम मास सेम दोनों मासलेस स्ट्रिंग से अटैच हैं एक फिक्स पॉइंट से सस्पेंडेड है हंग लाइक दिस नो डाउट क्योंकि सेम नेचर चार्जेस की तो बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन सैचुरेशन तक एक्ट करेगा. ये लॉजिक कर गया. इस पोजीशन में दोनों थ्रेड ने इसके साथ जो एंगल बनाया थीटा बट सी ये कंडीशन है कि वेरी स्मॉल और वी कैन से इट इज़ वेरी स्मॉल राइट. अब जो सेपरेशन बन के आया हमारे पास सैचुरेशन की पोजीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में इक्विलिब्रियम इज यूज्ड वो सेपरेशन मेरा ये होगा यानी दिस एक्स आई एम गोइंग टू प्रूव दैट्स द प्रॉब्लम. और बड़ी क्लियर सी बात आपने ढूंढ ली कि सिचुएशन भी आपकी इक्विलिब्रियम की है. अब कंसेप्ट हमारे पास है राइट हमने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर ये टर्म्स हमारी हैं तो नेट फोर्स जीरो होगा. इसका मतलब यहाँ भी आपका नेट फोर्स जीरो और जहाँ नेट फोर्स जीरो है वहाँ का प्रॉपर वे वही है. बस अब आपने नेट फोर्स जीरो एक्सप्लेन करना और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व. कैसे उसके लिए फोर्स स्टडी करेंगे किसी एक चार्ज पे फोर्स स्टडी करेंगे उनसे नेट फोर्स जीरो एक्सप्लेन करना रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना सिचुएशन का ध्यान रख के करना एंड वी विल गेट दिस. बढ़िया नंबर 1 चलिए इस पे स्टडी करते हैं. इस पे नंबर 1 ये रहा जी आपका मास है तो वर्टिकली डाउनवर्ड इसका वेट होगा. वेट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. ओके चलिए नो डाउट इसकी एक रिएक्शन होगी उस रिएक्शन से थ्रेड के अंदर टेंशन क्रिएट होगी. ओके ये क्या है रिएक्शन है और जो क्या करती है टेंशन क्रिएट करती है. ओके अब ध्यान दो कि अगर इस रिएक्शन लाइन को थोड़ा मैं और आगे बढ़ा लूं तो नो डाउट ये वर्टिकल लाइन है ये भी है तो दोनों के दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये भी थीटा हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि मोर ओवर इस वेट को हम रिएक्शन लाइन के साथ रिजोल्व कर सकते हैं स्टडी कर सकते हैं. करना जरा जिधर एंगल है उधर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट mg cos थीटा और उसे ठीक 90 पर ये रहा ठीक 90 पर ये वाला ये रहा दिस वन. ओके दिस वन ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज mg sin थीटा. इसका मतलब ध्यान दीजिए कि वेट के पास कंपोनेंट्स दो हो गए यानी फोर्सेस दो ये होगी तीसरी मेरी ये होगी फोर्थ वन बेसिक वन भाई रिपल्सिव फोर्स ये लग रही ये है वो रिपल्सिव फोर्स. ये रिपल्सिव फोर्स एंड दैट इज से F.
राइट, ओके, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि एंगल वेरी स्मॉल है तो हॉरिजॉन्टली लगेगी, ठीक है, राइट। एंड सी द थिंग ऑल्सो क्लियर कि प्लेन ऑफ बोथ द सेम, द प्लेन इज द सेम, सो डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी हॉरिजॉन्टल वन। इसका मतलब फोर्सेस स्टडी आपके हो गए, दो कंपोनेंट्स हो गए, एक टेंशन हो गया, एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स हो गया, कोई और ना जी ना। अब इनसे नेट जीरो करना है मुझे, तो देखो दिख रहा है मुझे ये टेंशन इससे बैलेंस है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अपने मैंने कहा रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, और ये मैं इससे बैलेंस करूँगा, यस इसकी मुझे नीड होगी। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन है कि ये mg sin थीटा, ठीक है जी, ये इसके एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है, लेकिन क्योंकि एंगल वेरी वेरी स्मॉल है तो ये अप्रॉक्सीमेटली अपोजिट टू दिस। अगर एंगल कम है इसको और पास लाएंगे, जितना पास लाएंगे समझ लीजिए कि ये मेरा कंपोनेंट उतना ही इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नियर बाई चला जाएगा। यानी ये समझ लीजिए, बिकॉज वी कैन राइट हियर बिकॉज ऑफ थीटा very very small, mg sin theta will be approximately opposite to electrostatic force F। डन, चलिए जी, तो इसका मतलब इसको इससे बैलेंस करते हैं, दैट इज ये आ गया जी मेरे पास सीधा से। यानी हमने किसको बैलेंस किया जी, F को किसके साथ किया जी, mg sin थीटा के साथ किया। F क्या है जी, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q, दिस इज ऑल्सो Q, Q into Q divided by R square is nothing but this horizontal is seen to you x square and that is mg थीटा। देखिए यहाँ एक अप्रॉक्सीमेशन हमने यूज़ किया है, या मैं यहाँ भी यूज़ कर सकता हूँ, एंड करके देखिए। अगर ये वेरी वेरी स्मॉल है तो एक कंडीशन हमारे पास है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बिकम्स इक्वल टू थीटा। वेरी वेरी स्मॉल एंगल के केस में साइन थीटा थीटा है रिटन। चलिए छोड़िए, और अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। वेयर थीटा है क्या, आर्क बाय रेडियस। ये रहा मेरा थीटा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा को देख लीजिए, ये रही वो आर्क, ठीक है। वी कैन हैव दिस वन आर्क, ओके, डिवाइड बाय ये रही वो रेडियस, और रेडियस क्या है, एल है, एल, ओके राइट। अगर मैं इसे पॉइंट ए कह दूं, इसे बी कह दूं, तो आई कैन राइट दिस इज आर्क ए बी डिवाइड बाय रेडियस, और रेडियस इज लेंथ, ओके। एंड आर्क ए बी इज नथिंग, दिस इज आर्क ए बी दैट इज अप्रॉक्सीमेटली एक्स बाई 2, दिस डिवाइड बाई एल। ये कंप्लीट इज एक्स, कंप्लीट इज एक्स, आधा एक्स बाई 2, और ये आर्क नियर टू दिस, क्योंकि मैंने इसको भी अप्रॉक्सीमेटली जब हम इसके बराबर ले रहे हैं तो इसको भी इस स्ट्रेट लाइन के बराबर लेंगे, राइट। चलिए जी क्लोज करो, और अब यहाँ mg और थीटा की जगह आप x/2 डिवाइड बाई एल पुट कर दीजिए। आइए इधर आ जाओ, और बेसिकली x मेरी नीड है, तो इसका मतलब मैं, चलो जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 नहीं है, Q स्क्वायर दिस डिवाइड बाई इस mg को यहाँ ले आया, इंटू 2 को यहाँ ले आया, L को वहाँ ले गया, x³ वहाँ हुई। प्लीज सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, ओके। चलिए इसके बाद mg इधर नीचे आ गया, ये बाई 2, दिस इज बाई 2, ठीक है, ओके। तो बाई 2 आपका कहाँ चला जाएगा, नीचे नहीं ऊपर जाएगा, हटाओ इसको, इंटू 2, ठीक है, राइट।
ओके अब ये एक्स स्क्वायर मेरा उधर चला गया, इट इज एक्स क्यूब, राइट। आई थिंक क्लियर, एक्स क्यूब इज दिस, ठीक है। चलिए जी, फिर चेक कर सकते हो, क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई नॉट, देन this mg here in denominator, okay, the 2 numerator, okay, right, L numerator, okay, x square into x cube, done। 2 से इसको हल्का सिंप्लीफाई करो, 2 2 जा 4 and I'm getting this x cube and that is as q square L divide by 2 pi epsilon naught mg, means this x becomes of same q square L 2 pi epsilon naught mg, this is 1 by 3, proved। ये लो जी, एक लेवल का क्वेश्चन है बट कंसेप्ट नॉन है, मुश्किल नहीं है, मेंटेन किया, प्रॉब्लम सोल्व। नेक्स्ट I come to number 3, then the figure is this, I can write question mark, problem, concentration, done, okay। देखिए जो भी सिचुएशन है मेरी, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल की सिचुएशन है, सेपरेशन ये है, और एक नॉर्मल प्रोजेक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट से राइट लाइक दैट है, इस पे पॉइंट P है, ओके। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज नॉट गिवन, ओके, दैट्स वाई ये डिस्टेंस अलग अलग है, से R1 R2, ये एंगल बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के दो फील्ड्स होंगे, रिजल्टिंग फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगा। हमें प्रूव करना है कि जो भी रिजल्टिंग फील्ड होगा ये पैरेलल होगा इस डी के, दैट्स द प्रॉब्लम। फील्ड विल बी पैरेलल टू सेपरेशन। बाय द वे ये भी आपकी IIT प्रॉब्लम है, बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज इट्स बेसिक इज सिंपल। सी, चलिए जी, कैसे, ध्यान दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेसिकली हमारी प्रॉब्लम होगी रिजल्टिंग फील्ड की। देखते हैं फील्ड को और फिर ये प्रूव करेंगे कि वो इसके पैरेलल है, और कब वो इसके पैरेलल होगा। ठीक है जी। उसने क्या किया, व्हाट आर द पॉइंट्स, यानी कौन से पॉइंट्स होंगे इस लाइन पर, ठीक है, कौन सी पोजीशंस होंगी, कौन सी कंडीशंस होंगी जो इसे पैरेलल करेगा। सिचुएशन इज दिस। बढ़ते हैं जी, चलो जी सॉल्यूशन। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू plus Q is E1. Electric field due to minus Q is E2. Then resulting according to the principle of superposition will be, and this will be, chaliye I'm writing here, this E will be E1 plus E2 बेसिक। लेट इसका फील्ड यहाँ पर E1 ले लिया, इसका आपने E2 ले लिया, ठीक है, तो रिजल्टिंग बन गया। सुपर पोजिशन से आपने उसको डील कर लिया, फिर आप आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, यू नो, डायरेक्शंस रेस्पेक्टिवली। ये लीजिए E1, ये E1 है मेरी, ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, और बड़ी सीधी सी बात है, यही कहीं अगर मैं चाहूँ तो इस E1 को इसके रेस्पेक्ट रिजोल्व कर सकता हूँ। कैसे, दिस विल बी E1 कोस अल्फा, और ठीक
90 डिग्री पर ऊपर आ गया मेरा E1 साइन अल्फा। कंपोनेंट स्केलर्स हैं, डन। आइए जी, बीटा सॉरी E2 नेगेटिव का है, ये रहा आपका नेगेटिव, दिस इज E2 ओके। ठीक, पॉजिटिव से आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। अब देखो ये कंडीशन है कि ये पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये और ये अल्टरनेट एंगल होगी, दिस इज बीटा। इसको भी हम रिजोल्व कर सकते हैं, E2 को इसके रेस्पेक्ट कर लिया मैंने, ये रहा, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा E2 कोस बीटा, और ठीक 90 पर नीचे इसका आ जाएगा जी वर्टिकल, एंड दैट विल बी E2 साइन बीटा। इसका मतलब ये है कि रिजल्टिंग के लिए दो फील्ड्स आपने ले लिए, दोनों प्लेन में है, उन्हें रिजॉल्व आपने कर लिया, ठीक है जी, राइट। अब आपने यूज़ करना है कि आप वो पॉइंट्स निकाल लो कि ये इसके पैरेलल है, और बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, पैरेलल का मतलब है कि फील्ड इस तरफ एग्जिस्ट करेगा, फील्ड के लिए ये कंपोनेंट्स रेस्पॉन्सिबल हैं, ये दोनों नहीं हैं। और नहीं है कब? नहीं है कब? जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, दोनों बैलेंस हो। गुड, अगर बैलेंस होंगे, ठीक है, तो 100% ये पैरेलल मेंटेन होगा। अब बैलेंस में, ठीक है, क्या मिलेगा हमें बैलेंस से, ठीक है जी, क्या रिजल्ट निकलेगा? वही पैरेलल का रिजल्ट होगा, वही बताएगा कि इस पॉइंट पर, इस पोजीशन पर पैरेलल होगा, या और ये दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग, ठीक है जी, क्योंकि इधर फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, अलग अलग जीरो होंगे। चलिए जी, तो दो कंडीशन मेरे पास होगी, एक तो बैलेंस करके देखता हूँ क्या मिलता है, एक दोनों को, ठीक है जी, अलग अलग लेके देखता हूँ क्या मिलता है, और कुल मिला के हम बात करेंगे ये जो भी मिला है ये इंडिकेट करेगा कि दिस विल पैरेलल टू दैट। पढ़िए, आई एम राइटिंग हियर। हाँ जी, इट इज क्लियर दैट for E parallel to D, parallel to D, E1 sin alpha will be balanced by E2 sin beta and or E1 sin alpha and E2 sin beta will be separately 0। ओके, ये पैरेलल है तो E1 साइन अल्फा बैलेंस होगा E2 साइन बीटा के साथ। ये हमने कह दिया कि E1 साइन अल्फा और E2 साइन बीटा, ठीक है, सेपरेटली 0 होंगे। चलो जी बढ़ो, ये चीज़ आपने यूज़ कर ली एंड यू आर राइटिंग इट हियर कि E1 साइन अल्फा, दिस इज E2 साइन बीटा। बढ़िए, E1 मैग्नीट्यूड है इस चार्ज के फील्ड का, यहाँ पर फॉर्मूला मेरे पास लिख देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू डिवाइड बाई R1 स्क्वायर, ओके, ठीक, साइन अल्फा, एंड दैट इज E2, ओके, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू का, E2 माइनस क्यू का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड है। चलिए जी, सो दिस विल बी 1/4
4 pi epsilon naught q divided by RT square, and that is sin beta. ओके जी, आई थिंक क्लियर। अब देखो सिंपल, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू चार्ज मेरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है। ओके, आई एम गेटिंग दिस साइन अल्फा डिवाइड बाई R1 स्क्वायर साइन बीटा डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। You know where this sin alpha, देखना जरा इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो। अगर मैं इसे पॉइंट R लिख लूँ, इसको A लिख लूँ, इसे B लिख लूँ, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ओके जी, साइन अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस PR डिवाइड बाई AP। ओके, आई एम राइटिंग द सेम PR divided by AP. This is nothing, PR divided by R1. AP क्या है मेरा, R1, राइट। ऐसे मैंने एंड साइन बीटा को सिंप्लीफाई कर लिया। ये रहा जी इसके अंदर, फिर इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन बीटा क्या है, दिस इज अगेन PR डिवाइड बाई BP, एंड दिस इज PR डिवाइड बाई R2, ठीक है जी। दैट इज PR डिवाइड बाई BP। ओके, इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन बीटा, एंड दिस BP इज नथिंग R2, राइट। चलो जी, इनको यहाँ अगर हम पुट कर लें तो ये मेरा चल रहा है PR बाई R1, R1 स्क्वायर ऑलरेडी हियर है, ये आ गया मेरा PR बाई R2, R2 स्क्वायर ऑलरेडी मेरे पास है, ये खत्म PR, इसका मतलब R1 क्यूब R2 cube, this is R2, this is R2, okay, right, R1 cube becomes equal to R2 cube, means R1 becomes equal to R2, और अगर R1 मेरा R2 आ गया इस पर्टिकुलर कंडीशन में, तो वो तभी होगा जब ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, इक्वेटोरियल पॉइंट हो। यानी ये कब, when P is as equatorial point। नेक्स्ट, अब अगली बात मैंने क्या कहा था कि ये दोनों कंपोनेंट्स अलग अलग आप जीरो कर दीजिए, ठीक है जी। एंड ये रहा साइन अल्फा, अगर मैंने जीरो कर दिया तो अल्फा बिकम्स 0 डिग्री, एंड अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अल्फा की प्रोबेबिलिटी 2, सिंपल। देखिए ये P पॉइंट पहली कंडीशन में इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ, दोनों साइड में, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी, इसलिए यहाँ भी हम एंगल की 2 प्रोबेबिलिटी लेंगे, राइट, क्लियर। बिकॉज इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, वी कैन हैव इट्स जनरल एक्सप्रेशन, बट वी आर इन नीड ऑफ 2 वैल्यूज। और कौन कौन सी, कब, साइन अल्फा, यानी यू सी फ्रॉम द सेम वी कैन सी, और वी कैन राइट इट अगेन, नो प्रॉब्लम। See this one, that's nothing, sin alpha, that is 0, it indicates alpha 0 degree and 180 degree, that's all, okay। sin alpha 0, तो अल्फा की दोनों प्रोबेबिलिटीज, एंड अब आगे बढ़े जी हम, E2 साइन बीटा 0, साइन बीटा 0 means the same, beta 0 degree and 180 degree। इसका मतलब ये दोनों की दोनों पॉसिबल कंडीशन हमने ट्रीट कर ली, और हमें जवाब मिल गया कि ये इसके पैरेलल, ठीक है जी, E पैरेलल टू D, कब, जब ये इक्वेटोरियल पर हो, अबव हो एंड बिलो हो, यानी वी कैन राइट, एंड देयरफॉर for E
parallel to D points done. Okay, E रिजल्टिंग पैरेलल टू दिस के लिए पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी इक्वेटोरियल पॉइंट अबव ए बी एंड बिलो ए बी. डन. नेक्स्ट, दैट इज ओके. सी फिगर. देयर इज ए cubical box. In the same dimensions are like this: A, A, A. In three-dimensional plane, it is kept at the position A from the origin as well as z-axis. Electrostatic field passing through it only along x direction, Ex value is this, alpha is this. यानी there is no field along y-axis and z-axis, right? Where this dimension A is to be given this. अब हमारी प्रॉब्लम यानी जो गिवन है वो आपका फिगर में क्लियर हो गया. प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि इस क्यूब से पास हो रहा है. अब क्योंकि ई वाई ई जेड कॉम्पोनेंट नहीं है, क्लियर है सिचुएशन में, सिर्फ कंपोनेंट फील्ड का ही है, तो फ्लक्स पास कैसे होगा? अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी इन दोनों फेसेस से. दोज आर मार्क्ड. दैट इज द प्रॉब्लम. सेकंड कि फील्ड किसी ना किसी चार्ज का होगा. फ्लक्स कब होगा? जब चार्ज इनसाइड होगा. तो चार्ज इनसाइड इसके क्या है? दैट इज आवर प्रॉब्लम. यानी ये क्लियर हो गया. वी कैन सी हियर कि गिवन सॉल्यूशन given as in figure. First, electrostatic flux problem question mark. Okay. Second, charge question mark. Situation clear. Now proper way. Direct Gauss theorem. चलिए, make the concentration अपॉन फर्स्ट. देखिए, टू मेक इट इजियर, इस पर्टिकुलर फेस को मैंने नंबर 1 कह दिया और इसको मैंने नंबर 2 कह दिया. तो रेस्पेक्टिवली नंबर 1 और नंबर 2 से हम फ्लक्स निकालेंगे, फिर टोटल कर देंगे. ओके, राइट. ये हमारी पहली प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी. ठीक, चलिए जी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स पासिंग through number 1 and number passing through 1 and 2 surfaces will be. चलिए जी, ये रहा जी. नंबर 1 पे मैंने phi1 ले लिया. phi1 is taken. ये रहा रिलेशन मेरे पास phi1 का, एंड दिस इज एस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा. चलो जी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ई और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. दिस इज ई इज नथिंग बट ई एक्स इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा. नाउ सी, ई एक्स मैं पहले ये वाली फेस ले रहा हूँ. तो ई मेरा ये रहा जी. ई की डायरेक्शन गिवन है. ओके, अब यहाँ से हमने डी एस कट कर लिया. ये रहा जी स्मॉल सरफेस डी एस 100% नॉर्मल टू इट. ओके, दैट्स वाई एंगल बिटवीन दिस एंड दिस बिकम्स 180 डिग्री. इसका मतलब यहाँ मैंने इसको सिंप्लीफाई किया. ई एक्स इंटीग्रेशन डी एस कोस 180 डिग्री. दिस इज -1, यानी दिस इज ई एक्स इंटीग्रेशन डी एस. दिस इज ई एक्स ए स्क्वायर कोस 180 -1 माइनस.
Okay, I'm going to clear it. Integration of ds is ds is a square. इस फेस का एरिया स्क्वायर फेस है, क्यूबिकल बॉडी है. ओके, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए. दिस फाई टू ई एक्स माइनस ई एक्स. ई एक्स क्या है मेरे पास, ये रहा जी अल्फा एक्स की पावर 1/2 ए स्क्वायर. ओके, ए एक्स इज अल्फा एक्स की पावर 1/2 ओके ए स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. अल्फा क्या है, अल्फा इज 800 माइनस एक्स क्या है मेरे पास, एक्स इज द पोजिशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दैट इज ए. क्योंकि देखिए यहाँ कीप द कंसंट्रेशन कि अगर ये 3D बॉडी मेरी, ठीक है, इस 3D प्लेन में कुछ ऐसे होती कि ओरिजिन इसके कॉर्नर के साथ कोइंसाइड करता, ऑलराइट, तो एक्स मेरा खत्म था. लेकिन ये सेपरेट है तो इसका मतलब एक्स पोजीशन इन्वॉल्व होगी. ओके, फ्लक्स पास हो रहा है, राइट. और कितनी हुई, ये नहीं पोजीशन मेरी ए पोजीशन इज गिवन. दिस वन इज ए, दिस वन, राइट. 3D में अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे द सेम. ओके, चलिए जी, ए विल बी टेकन. ओके, एक्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, देयर शुड बी नो कंट्राडिक्शन. एक्स का मतलब पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि 3D प्लेन है और सब कुछ इसके रेस्पेक्ट है ओरिजिन के, तो इसके रेस्पेक्ट ये ए है, ये ए है. डन. चलिए जी, ए है तो लिख देता हूँ. दिस इज ए 1/2, दिस इज ए स्क्वायर मीन्स माइनस 800. ए 1/2 प्लस 2, इट मीन्स दिस इज ए 5/2. चलो जी, एक इक्वेशन. एंड दिस इज 5/1. चलिए अब नंबर 2 से, ये रहा जी. नंबर 2 से पहले मैं ds की डायरेक्शन क्लियर कर देता हूँ. यहाँ ये रहा जी नॉर्मल, यानी वहाँ 180 था और यहाँ आपका दोनों के बीच में 0 डिग्री. चलो जी, इसका मतलब phi2 जो मेरे पास आ गया वो आ गया जी ई एक्स इंटीग्रेशन ds cos 0 डिग्री एंड दैट इज नथिंग ई एक्स ए स्क्वायर. वेयर द सेम थिंग इंटीग्रेशन ds यहाँ भी ए स्क्वायर, ये ईच फेस स्क्वायर है, टोटल एरिया ए स्क्वायर, राइट. इसको मैंने पुट कर दिया एक्स को, फिर उसी तरह से 800, ठीक है जी, और x की पावर 1/2 ए स्क्वायर, यानी अल्फा एक्स की पावर दिस ई एक्स अल्फा, ओके दिस, राइट. चलो जी, अब फिर x फिर पोजीशन है, लेकिन अब पोजीशन किससे चाहिए, इससे चाहिए. अगर इससे चाहिए तो a मेरे पास ये है, a मेरे पास ये है, कुल मिला के 2a. चलो जी, कुल मिला के x, ये रहा 800, x बिकम्स 2a 1/2 ए स्क्वायर. थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 800 √2 और a को मैंने अलग अलग कर दिया, बचा मेरे पास a 1/2 और a 2, यानी कि दिस विल बी 800 √2 a की पावर 5/2. इक्वेशन नंबर 2. ये रहे दोनों के दोनों फ्लक्स रेस्पेक्टिवली. एंड देयरफॉर ये रहा जी मेरे पास टोटल जो मेरी प्रॉब्लम थी, एंड दैट इज टू बी सॉल्व्ड. 5/1 + 5/2, दिस इज माइनस 800 a की पावर 5/2, दिस इज प्लस 800 √2 a की पावर 5/2. ओके, सिंप्लीफाई, आई एम टेकिंग कॉमन, माइनस 800 a की पावर 5/2 प्लस 800 ले लिया मैंने, 800 a की पावर 5/2, 800 a की पावर 5/2. यहाँ से मुझे क्या मिला, -1. यहाँ से मुझे क्या मिला, √2. ओके, और ये ऑलरेडी मेरे पास है 0.1. इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज नथिंग 800 0.1 की पावर 5/2 into √2 -1, and that is nothing
but that will be the flux. यानी फर्स्ट वन क्वेश्चन हो गया. सेकंड सिंपल. अब फ्लक्स अगर मेरे पास आ गया है तो सेकंड में कुछ नहीं है, यूजिंग गॉस थ्योरम. और वो कहती है कि सेम फ्लक्स क्या है, दिस इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब Q बिकम्स दिस इज फाई E इंटू एप्सिलॉन नॉट. एंड फाई ये रहा मेरे पास 800 0.1 5/2. This is √2 - 1 into epsilon naught 8.85 into 10 की पावर -12. ये लो जी. That one will be how much coulomb and that one will be how much Newton per coulomb meter square respectively answers. We can have a little more simplification, but okay, sufficient. चलिए ये प्रॉब्लम भी मेरी हो गई. तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं थ्योरी के टाइम किए हैं, इसके बाद इस न्यूमेरिकल यूक्लिड्स इस सेशन में किए हैं. नो डाउट ये न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ चैप्टर को नॉट ओनली CBSE बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कवर करते हैं. विद द सेम ये चैप्टर कंप्लीटेड. Okay, next class, subscribe and like. Thank you very much.